آپ سے نا پہلے تو آپ دو فرق بتائیں جی دونوں اچھے اور برے کبوتر، اچھے کی آنکھ اور برے کی آنکھ، کہ یار یہ چیز اگر ہو تو یہ برا ہے، یہ چیز نہ ہو ضرور تو یہ اچھا، اس ضرور۔ طرح کر کے ذرا تھوڑا سا پہلے ذرا آنکھ پہ آتے ہیں ہم آنکھ کہ میں نا آنکھ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں چنگا ہے ماڑا ہے۔ نہیں دیکھیں، آنکھ میں نا دو تین چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ مین جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، دو چیزیں بدن اور پر، اس کے بعد جو آنکھ آتی ہے نا، اس کا کردار جو ہے نا، وہ ایک تو نسل چیک کرنے کے لیے، دوسرا اس کی عقل کے لیے، تیسرا پرواز کا بھی تھوڑا سا اس میں ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ جس کبوتر کی آنکھ میں چمک ہے وہ ملیمیت کی نشانی ہے۔ جس کبوتر کی آنکھ میں چمک ہوگی وہ کبوتر اچھا اڑے گا، یہ شرطیہ بات ہے۔ باقی ایک چیز کو میں نہیں مانتا، جو لوگ رنگ وغیرہ بولتے ہیں نا، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے۔ 99% آپ نے تو پورا پنجاب دیکھا ہے، آپ بلکہ پورا پاکستان ہی دیکھا ہے، پنجاب تو نہیں کہہ سکتے، آپ پورے پاکستان میں آپ نے وزٹ کیا ہے۔ جتنے کبوتر گرمی میں اڑتے ہیں سب پلین آنکھوں کے ہیں، 99%۔ کوئی ایک آدھا شاذ کوئی ہوگا، ایک آدھا پیس، عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ استاد تنویر بولو صاحب کہتے ہیں کہ عمر کا تقاضا ہے رنگ تو، ہاں ایسی عمر کے ساتھ بھی آتی ہے۔ دوسری بات ایک چیز اور ہے، ایک راس ایسا ہے، فروزپوری اور کمگر آپ لگائیں رنگ آئیں گے، لازمی شرط ہے۔ کبھی مجھے شوق تھا آنکھیں بنانے کا نا رنگ والی، لیکن اب تو شوق ہی چینج ہو گیا۔ تو جتنے آپ کو کبوتر کسی کے بھی اچھے اڑتے دیکھیں گے نا، 99% وہ پلین آنکھ میں ہوں گے، اور زیادہ گلابی آنکھ میں ہوتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت آنکھ میں آپ کو کم نظر آئیں گے، رنگوں والی یا زروں والی یہ آنکھیں آپ کو کم نظر آئیں گی۔ استاد خرم ثاقب صاحب نے ایک دفعہ بات کی تھی ہم سے، انہوں نے کہا تھا لوگ دیکھتے ہیں ذرے دار آنکھ، اس ذروں کے چکر میں ذرے بنانا آنکھ ڈل کر دیتے ہیں۔ آنکھ ہوتی باریک جالی ہونی چاہیے اگر ہو بھی تو پلین اور باریک جالی دار جو آنکھ ہوتی ہے وہی کامیاب ہے، ان پہ نمی ہم نے تو زیادہ یہی دیکھا کہ پلین آنکھ ہی زیادہ اڑتی ہے، وہی سادی آنکھ ہی۔ اچھا اس میں آنکھ کی کہ یہ جو موٹائی باہر نکلی اس میں نہیں، دو چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں، جس کبوتر کی آنکھ باہر نکلی ہے نا، وہ ضائع نہیں ہوگا، پلکوں سے باہر کم ضائع ہوگا، لگڑ کے قابو بھی نہیں آئے گا زیادہ۔ وہ کس کے قابو آئے گا؟ وہ نظر گھر پہ نہیں میں نے کبھی کسی کے دیکھا۔ نہیں یہ نہیں کہ ایکسٹرا ہر کبوتر کی ہوتی ہیں، کوئی عام سا بھی کبوتر آپ پکڑ لینا، نارمل تو ہوتی ہے نا، نارمل ایک ایکسٹرا آج کل نہیں سائڈ سے بنا رہے ہوتے ہیں تصویریں۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس کبوتر کی آنکھ پلکوں میں، جسے میں پلکوں پنجابی میں میں سما جائے، پلک جو گرپ ہے نا اس کی، وہ اس کی شیپ پوری ہونی چاہیے، خراب نہ ہو، پھیل نہ رہی ہو، سائڈ کا گوشت نہ نظر آئے۔ بالکل سائڈ کا گوشت نظر آئے گا اگر اس کا، تو وہ خراب ہے، وہ نہیں ٹھیک، نقصان ہے اس کا۔ اور ایک دوسری چیز ضرور ہے جو بڑی اہم ہے، اس کی موومنٹ بہت ضروری ہے۔ ہم دو طرح کی آنکھ بولتے ہیں، ایک ساکن اور ایک اس کو بولتے ہیں متحرک۔ ساکن آنکھ جو بالکل ہلاتا نہیں کبوتر، ایک متحرک جو وائبریٹ کرتا ہے کبوتر، اپنی آنکھ کو ہلاتا ہے، کچھ لوگ اس کو جرگ بھی بولتے ہیں۔ یہ عقل مند کبوتر کی نشانی ہے، کیونکہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا، میری ایک مادی ہے بڑی جو فلک شیر تھی نا، کہ ٹاوی وغیرہ چل گئی ہے گرمی میں، تو کوئی کبوتر نہیں ہے اس کے جس کا پر اس مادی کا پر جن کبوتر میں وہ گر آتے تھے ٹاوی میں بھی۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے کبوتر میں، چکنا کہہ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل چکنا۔ وہ تو جیسے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی آنکھیں ایسی ہوتی ہے کہ کچھ تو شریف طبیعت کے ہوتے ہیں نا، چکنا کہہ سکتے ہیں ان کی آنکھیں چل رہی ہوتی ہے، دائیں بائیں وہ دیکھ رہے، موو کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ایک چیز آپ نے، اب آنکھ تقریباً اتنی ہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ اس سے ایک چیز کی اور تھوڑی وضاحت کر دیں۔ دوسرا ہم اس کو نسل کے لیے دیکھتے ہیں، جیسے جالدار کبوتر میں اگر لال آنکھ ہے تو وہ قصوری ہے، اگر گرے آنکھ آ گئی تو وہ فروزپوری ہے۔ جونسرا کبوتر اگر لال آنکھ میں تو اس کو ہم قصوری بولیں گے، اگر گرے یا وائٹ آنکھ میں تو اس کو سیالکوٹی بولیں گے۔ یہ ایک نسل کا ہم نے تعین کرنا ہے آنکھ سے، اور اس کی عقل کا، اور یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں کبوتر بازی میں۔ اس کے بعد ایک آپ نے بات کی تھی کندھے میں کوئی چونچ کی نوک ہونی چاہیے، جی بالکل۔ اس کے اوپر جو ہے نا اسپیشل مجھے رات جب میں نے لگایا نا اسٹیٹس کہ وہ اس پہ ایکسپلینیشن نہیں۔ اچھا دو تین چیزیں ہیں، جو کندھا ہے نا کبوتر کا، زیادہ چوڑائی والے پر کا کبوتر نہیں اڑتا گرمی۔ یار کوئی کبوتر پکڑنا حسنین بھائی کیوں کہنا کوئی نہیں، مجاہد جڑے کبوتر بازی چڑے نا انہاں چ ایک دو کبوتر، وہ 34 نمبر مادی لے آ کے دکھائیں، 4 نمبر بغل پٹی نہیں پٹھی جڑی کتنا نمبر ہے گا؟ اچھا 4 بنڈے بند والی لایا جل۔ اصل دے وچ جڑی اصل میں بات ہے نا کندھے کی، اس میں پر کا بڑا کردار ہے۔ زیادہ چوڑائی والے پر جو ٹپیں ہیں نا کبوتر کی، وہ زیادہ چوڑائی والی ہوں گی نا، مضبوط تو ہوگا وہ، لیکن لمبا نہیں اڑے گا۔ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جن نے اڑنا نہیں انہیں جانا بھی نہیں، کم اڑے گا، زیادہ لمبا نہیں اڑے گا۔ جتنی ٹپیں یہ باہر والی بریک ہوں گی نا، اتنا زیادہ کبوتر اڑے گا۔ یہ ٹپیں، یہ جو باہر والی ٹپیں ہیں، یہ ایک منٹ مال آ جا اوپر، ادھر سے آ کے پیچھے چلا جا۔ کون سی ٹپیں کہہ رہے ہیں جی؟ یہ باہر والی،
ये बारीक होनी चाहिए। ये बारीक होनी चाहिए। ज्यादा जितनी, जैसे ये बहुत ज्यादा चौड़ाई में आ जाएंगी ना टिप्पे, वो कबूतर लंबा नहीं उड़ेगा लेकिन जाया भी नहीं होगा, मजबूत ज्यादा हो जिन्हें जाएगा। उंगल परे कहते हैं। उंगल पर है, हाँ। वो लंबे नहीं उड़ेंगे, कम उड़ेंगे लेकिन जाया नहीं होंगे। दूसरी ये चीज जो है ना, ये इसकी ना जोड़ है कबूतर का। ये जितना सीने के ये कमर के नजदीक होगा उतना कबूतर मजबूत होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा, उसको आसानी पैदा होगी उड़ने में, उसकी ताकत खर्च नहीं होगी, कम खर्च होगी। ये चीज, ये किल भी जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना, ये जोड़ है इसका। ये चुभना चाहिए। जैसे मैंने ये आप हाथ लगाएं, इसको हाथ लगाएं। ये फासला आप कह रहे हैं ये कम होना चाहिए। हाँ, ये कम होना चाहिए। ठीक है, ये फासला इस कील से शोल्डर कम से, होना हाँ, चाहिए। ये हाथ लगाएं आप, ये कील आपको बिल्कुल बड़ा वाज़ेह बिल्कुल, चुभेगा। हाँ बिल्कुल। ये कुछ कबूतरों का ना इस जगह पे गोश्त ज्यादा होता है, कुंदा जिसे हम पंजाबी में मोटा कुंदा बोलते हैं, उसका ये नहीं चुभेगा आपको, वो कबूतर नहीं लंबा उड़ेगा, मोटे कुंदे का होगा और बहुत ज्यादा डंडे खाएगा, उसके बावजूद भी वो असील लंबा नहीं मुर्गों में उड़ेगा। बाद का ये नंगे भी होते हैं, हाँ, है ना। फिर और दूसरा एक तिल इसका ना इस जगह पे भी होता है, ये हाँ। दूसरा ये है, ये भी चुभना चाहिए इस जगह पे। ये देखिए, ये हाथ लगाया सही हमने, है, ये बिल्कुल सही है। तो हम जब कबूतर देखते हैं ना, ये इस ऐसे पकड़ के देखते हैं, इस जगह से देखते हैं। दूसरा जो सबसे अहम चीज है, इन दोनों के दरमियान फासला भी कोई काउंट करता है? ये इसके शोल्डर को और इसका फासला काउंट करता है। इन दोनों ये भी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, इन दोनों में जितना फासला, क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना, चौड़ाई बढ़ जाएगी कुंदे की, कुंदा वसी हो। उसको हाँ वसी हो जाएगा, दराज कुंदा जिसे बोलते हैं। 7-8 माह से मादी अंदर है, ये उड़ी नहीं है। और मस्कुलर देखने की चीज। बड़ी शानदार कबूतर। कामरान भाई एक दिन ही मैं खोल कर नहीं लाया जेब से। अच्छा जी, ये देखें ना, कुछ लोग आने नहीं उड़ता है इसलिए मोटा हो गया है। मौसम दे अब आप इसको पकड़ के ना, इसके ये मसल देखें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, इसकी हड्डी की शेप भी नजर आ रही होगी आपको, हाँ। और ये मसल भी देखें इसके, आपको मजा आएगा देख के इंशाल्लाह। ये 3 नंबर है। नहीं जी, इमरान भाई जो बात कर रहे हैं वो इनकी बात कर रहे हैं। ये हड्डी है, हाँ, ये मसल ये बिल्कुल मसल, बिल्कुल। ये गोश्त और मसल जो इसकी यहाँ पे, ये अभी चूंकि ये 7-8 माह से बता रहे हैं सैन भाई अंदर नहीं उड़ाई, तो ये मामूली सा इसको आपको थोड़ा फर्क नजर आएगा, लेकिन उसके बाद वो ये देखें, ये वो जोड़ हैं जिनकी बात कर रहे हैं। तो इमरान भाई ये अभी इसके पॉइंट तो आपने बता दिए, तो जी जी, इसमें हम पॉइंट ही देखेंगे या ये ब्लड लाइन भी कोई? नहीं, मैं तो पॉइंट ही देखता हूँ हम्म, इन्हीं कबूतरों में से। ये यानी बगल पार्टी मादी है, जो खराब पॉइंटों का निकलेगा नहीं उड़ेगा। इधर शायद मौजूद भी होगा 2-4 पीस ऐसे जो नहीं उड़ते। खराब इनमें क्या खराबी आनी चाहिए? खराबी बदन की आती है, सहत निकल आते हैं। परों में क्या खराबी है? परों में पर की तिली मोटी कर जाते हैं। इधर लग गया तीली कितनी की मोटी हो सकती है? ये तिली, ये कबूतर देखें आप, ये दिखाएं छोड़े इसको। अब ये जो कबूतर मेरे हाथ में आया ना, ये पहली बाजी रात रह गया था कोई गल नहीं। इस साल जेठ की, ठीक है, और 7वीं बाजी ये बैठा, कितने बजे? 7 बजे ही बैठा था। 7 बजे बैठा जी, पर आखिरी वैसे बाजी। नजर आ रहा है माशाल्लाह। ये पर इसका देख लें, ये जितना बारीक होगा उतनी प्रवास ज्यादा होगी। इसकी ये टिप्पें देख लें आगे से ना, गुलाइयां जो हैं, ये देख लें आप, ये बेहतरीन पर है। नहीं, मोटी और बारीक तीली का क्या अंदाजा क्या होगा? देखें, ये इसकी तीली देख लेना, जैसे ये प्रेस की हुई है, जिसकी यहाँ से गुलाई में आएगी तीली, वो खराब है, वो कबूतर नहीं उड़ेगा। यहाँ से अब आप कुछ ऊपर राज वाली की बातें आपको बतानी पड़ जाती हैं, तो मैं एक आपको खुली बात बताता हूँ। हम कबूतर देखते हैं ऐसे, अब कबूतर मेरे साथ जी भी ऐसे पर पकड़ते हैं, हाँ मैं जी। भी ऐसे पकड़ता हूँ। जब इस जगह से पकड़ते हैं ना, इसकी तो एक तो शेप देख लेते हैं पर की, दूसरा इसकी तीली भी देखते हैं कि तीली कितनी मोटी है, और दूसरा आपको नजर आ रहा है कि ये यहाँ से प्रेस है या गोल है। ये 2 चीजें बड़ी अहम है। 99% मैंने अपनी कबूतरबाजी में 35 साल में कोई भी मोटी तीली का कबूतर नहीं देखा जो, ज्यादा उड़ता हो। हाँ, और बरीक तीली का मैंने ठप्पा को नहीं देखा एक भी। जिसकी चप्टी तीली हो, बरीक हो और वो ना उड़ता हो, ऐसा नहीं कबूतर देखा कोई। अब बाकी अपना अपना फर्क बाकी है। बगल का भी किरदार है। बिल्कुल है, बगल का बड़ा किरदार है, बगल की परियों का बड़ा किरदार है। अब ये ऊपर- देखें, जैसे हम पर खोलते हैं ना, ये जिस कबूतर का ऐसे गैप बन जाएगा ना, ये देखें, ये तो मैंने जरा सख्ती से इसको पकड़ा ना, ये गैप देख रहे हैं आप, वो कबूतर सहत होगा, पर खोलती है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये मैंने पर खोला ना, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है। ये इसके ऊपर ये पूरे देखें ना, बगल के कितने 6-7 पर उसकी कमर के ऊपर आ गए हैं। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊंगा। जी जी ये जो आप पहचान बता रहे हैं ना, पर खोलने जी वाली, जी जी जी। ये सिर्फ उस बंदे के लिए ठीक है जिसको पर खोलना आता है और जिसको कबूतर पकड़ना आता है। पता है, मेरे पास ना दोस्त ये आते भी हैं। बड़ा फर्क है इमरान भाई।
मैं फ़र्क की बात आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे पास 10,000 बंदा आया ना कबूतर शो करने के लिए, 9,990 बंदे जब कबूतर पकड़ देना, मैं उनको एक माजरत भी साथ करता हूँ कि यार बुरा ना मनाना, आपको सही तरह कबूतर नहीं पकड़ना। ये भी थोड़ा सा लेक्चर कबूतर थोड़ा सा ना, ये देखिए कबूतर पकड़ने का जो सबसे अच्छा तरीका ना, ये जैसे मैंने ये पकड़ा यूं, ये देखिए ये कबूतर पकड़ लिया, उसके बाद जब आप इसके हाथ लगाएंगे ना सीने पे, तो आपको एक इसके सारे स्पेयर पार्ट्स लहरा लहरा नजर आएंगे। अब जब ऐसे आप कबूतर पकड़ेंगे आगे से, तो उसको पता नहीं चलेगा आपने हड्डी क्या देखी है। और जो लोग गलती करते हैं वो बस यहाँ से यूं देखते हैं हड्डी, वो पता ही नहीं चलता कि हड्डी क्या देखी है। जब उसकी पूरी स्टार्ट से लेके एंड तक आप वो हड्डी को नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। हम बिल्कुल ये चीज भी मेन है ना कि जब कबूतर ही नहीं आपको पकड़ना आया तो फिर वो जो पॉइंट आपने बताया वो तो जाया हो गए सारे। पहली बात ही कामरान भाई रात रह गई सी। 10:30 बैठा है। सुबह 10:30 रात रह के ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰੀ ਬਾਜ਼ੀ 2 ਰਾਤ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੌਥੀ ਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੜਕ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਚੌਥੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ 4:15 ਬੈਠਾ जबरदस्त। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਬੈਠਾ। 7ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ बहुत शानदार। 7वीं बाजी रात रहे। 7ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਬਹ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਛठी ਬਾਜ਼ੀ ਰਾਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਛठी ਬਾਜ਼ੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ, 7ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਛठी ਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਪ ਟੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਜੌਂਸਰੀ ਹੈ, अच्छा ਟੈਡੀ ਕਲਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। उस लारी जी बनी है बड़ी सोहनी। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਨੈਨ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜੋੜਾ 4 ਨੰਬਰ ਨਾ। चाय पिला। ਉਹਨੇ ਦੀ ਤੀਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਤੀਲੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੀਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲकुल प्लस ये तो काली है ना, काले रंग में बड़े आराम से फील होती है। हाँ। और इसकी ये देखे ना पर खोले ना, बगल के पर कितने ज्यादा कमर के ऊपर आ गए हैं, कितना पर मैंने खोल दिया इसका। परों की शेप का भी किरदार है, इसका बड़ा शेप बड़ी किरदार है, खूबसूरत है। शेप का बड़ा किरदार है, क्योंकि मैं ज्यादा पसंद करता हूँ स्ट्रेट पर के कबूतर, जैसे इसकी है ना स्ट्रेट। मेरे तकरीबन आप जितने कबूतरों के पर देखेंगे यही पर आएगा, ये दूसरा स्ट्रेट पर पर किस तरह से आप इसको स्ट्रेट कह रहे हैं, मतलब ये कर्व नहीं कर रहा? नहीं। ये तीली देख लें, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है ये। स्ट्रेट इस तरह कह रहे हैं? हाँ इस तरह, ये देखे ना पर खोला पूरी स्ट्रेट है, ठीक है। स्ट्रेट से। और दूसरी एक चीज, ये आगे से ना बेंड नहीं हो रहे, आगे से सीधे हैं। जैसे ये देखे ना मेरे, जैसे ये मैं शेप बना रहा हूँ, आगे से कर्व खाएंगे ना बेंड हो जाएंगे, तो फिर वो स्ट्रेट पर नहीं है, ये आगे से सीधे हैं, इसलिए इसको ये यही मैं कह रहा हूँ ना, ये वाली चीज सीधी हाँ, आ रही है, सीधी इसको आ रही कह है, रही है, इसको यूं कह नहीं। रहे हैं। नहीं, यूं अंदर- नहीं, यूं हाँ, ये स्ट्रेट पर स्ट्रेट का पर, मकसद ये। लोग सीधा पर समझते हैं जो यूं कर्व ना नहीं करे। नहीं नहीं। हाँ? ਚੰਗੇ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਪਰ ਵਾ। आया था पर बरीक है, भी बड़ी अच्छी मादी उड़ी है, ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਰਾਤ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਦੀ। ये जी मुजाहिद भाई के घर के कबूतर हैं जो बाजियों में उड़े हुए हैं, वो दिखा रहे हैं हम आपको। अब इसकी आंख की ग्रिप देख लें आप, और सिर इसका ठीक है साइज के हिसाब से? हाँ बेहतरीन है। ਇਹ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਚੇਤਰ ਵਿਸਾਖ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚਾ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਦੀ 7ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਸੁਬਹ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸੁਬਹ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਤੇ ਬੈਗ ਹੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੁਨਸਬ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ। इमरान भाई पर का चढ़ाव भी जाहिर बात है, पर का चढ़ाव होगा तो एयर गैप नहीं ना बनेगा, एयर गैप बनेगा तो फिर खराबी है। नहीं, वो तो इस तरह भी है ना, हाँ जी, एक इस तरह भी है, ये वाला, ये हाँ भी जी, इसका भी है। फासला होना चाहिए। कम फासला होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना कबूतर का ये एक पर हम पसंद करते हैं ये बगल से बड़ा हो, जिसका ये बड़ा होगा ना उसका कम फासला होगा, जिसका ये छोटा होगा उसका फासला ज्यादा होगा। ये पहला पर, पहला पर हाँ जी, जितना जिसका इससे ऊंचा होगा ऊंचा होगा वसी होगा। उतना वसी होगा, दराज कुंदा होगा, और उतना उसका पर का आपस में फासला कम होगा, एक पर का दूसरे पर से। हम मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, जी जी, शौक कर रहे हैं, अभी भी हम जो शौक करें, मतलब 2-3 तरह की बॉडी हमने देखी है, जिसामत, साइज वगैरह। तो आपने पंजाब में भी देखी, तो आप क्या समझते हैं कि साइज भी एक जैसे ही होना चाहिए? आज आ गया साइज जो दरमियाना ही उड़ता है, ज्यादा लंबा किसी भी गर्मी- शहर में? किसी भी शहर में बहुत। अब मैंने बड़े कबूतर देखे हैं जो गर्मी में अच्छे उड़ते हैं ना, हालांकि मियाँ वाले के कबूतर लोग बोलते हैं कि बड़े साइज के, लेकिन जो मैंने गर्मी में ज्यादा अच्छे उड़ते देखे वो नॉर्मल साइज के कबूतर हैं। अच्छा, मैंने नहीं देखे मियाँ वाली के बड़े साइज के कबूतर। मैंने खुद नहीं देखे, सारे सुना कहते है हैं मैंने कि बड़े साइज के उड़ते, पर जो मैंने उड़ते देखे हैं ना वो नॉर्मल वो साइज। इतने की बड़े हैं जितने आपके जौसरे या जी ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे। बगल पाटा कबूतर का ये साइज था उसका, सारी फड़कें उसकी साथ के भाग गई। लेकिन ज्यादा हम लाइक नहीं करते, बहुत बड़ा साइज ना लाइक नहीं करते। नहीं, वो इस Normal दफा size मौसम भी है। तो और तरह का था ना।
मौसम भी तो था ना ऐसा कि जिसमें वो चल जाए। अच्छा कबूतर ही उड़ता है। हाँ नहीं वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मौसम का फर्क पड़ता है। पता है लोगों के सुबह सुबह बैठ जाते हैं, क्यों बैठ जाते हैं? उनको उड़ाने नहीं आते। दरमियाने उड़ाए होते हैं। जो मेन वजह वो ये भी है ना। नहीं हकीकत है, हाँ जो हल्के कबूतर होते हैं वो बैठ जाते हैं सुबह, कुछ उड़ाने भी नहीं आते, ये भी दोनों चीजें हैं। हाँ ये चीजें भी होती है जिनको उड़ाने ना आए। अब मैंने ना एक मैं बात और बताता चलूं दोस्तों को कि जो मैंने अपनी लाइफ में खराब कबूतर उड़ाए ना दोस्तों के, चाहे अस्सू है, बैसाख है, जेठ में 90% ठंडे कबूतर उड़ाए हैं। जिसने भी ठंडे किए खराब हो गए। केस होता है, अस्सू में भी लोग कर लेते हैं, हाँ हाँ करते तो हैं। बड़े बड़े अच्छे उस्ताद भी गलती खा जाते हाँ वो हैं, कहते हैं जी कबूतर तलख हो गई सी, वो उठा के ठंडा कर दे। ठंडे करके फिर खराबी हो जाती है। अच्छा अब अगर हम चले कबूतर के निचले हिस्से पर तो आ गए, ऊपर के हिस्से का भी कोई लेना देना है? तो अंगूठा तो आप बड़ी जोर से मारते हैं ऊपर भी। नहीं देखें, अंगूठा चलाने से ना मैं ये पता तो चलना चाहिए। ये लगाओ ना मुजाहिद भी साथ अपने, जरा आप फासले पे खड़े हो। ये जो जगह है ना इसकी, हाथ फेर है तो एक हाँ ठीक है। मुलायमियत महसूस होती है इसमें। ये जब हम हाथ लगाते हैं ना तो उसके मुलायमपन का पता चलता है। आगे तो इधर ही खड़ा रहे, आज तेरा कोई और कोई काम हाँ, आप देखिए कबूतर दोस्तों ना तारफ करवाओ, कोई दोस्त ने उन्हें शागिर्द भी होना है। ये जरा शौक शुक करा लेना करते। अब इसकी तीली देख लें। अच्छा एक मैं और बड़ी आपको मजेदार बात बताऊं। आप भी नहीं जाएगा। कुछ लोग ना बड़ा पसंद करते हैं जी कबूतर की ना स्प्रिंग होना चाहिए, ये भी फॉल्ट है। हाँ मुझे खुद नहीं पसंद। फॉल्ट है, जो साहत कबूतर होगा ना उसका स्प्रिंग टाइट होगा। कुछ लोग शौक कराते हुए कहते हैं जी इसका स्प्रिंग बड़ा तगड़ा है। अब मेरे दोस्त हैं माना भाई ना जंजों वाले, 2015 की बात है, मुझे कहने लगे यार उस्ताद जी बात ये है कि स्प्रिंग तगड़ा होना चाहिए कबूतर में, तब वो हाँ अंदर मैंने कहा यार इसका जवाब सिंपल सा मैं आपको देता हूँ। मेरी 4 मादियाँ जो जेठ में